Welcome students, welcome to the lecture number 1 from the chapter of motion in a straight line. And today we will be discussing about the rectilinear motion. What is this rectilinear motion? Is the other word for the motion in a straight line. So that is why I have written it as rectilinear motion. And the second point which we will be discussing here is the frame of reference. Third will be what is the difference between displacement and distance. And the fourth point will be the velocity. What is velocity and what is speed, and what is the basic difference between them. Then we will be discussing the fifth point of average velocity versus average speed, and then we will be taking up few position time graph if the time permits. So rectilinear motion जो है, that is the another word for the motion in a straight line. Now motion क्या है? Motion is basically the change in position of an object with respect to the time. अगर एक object की position change हो रही है with time, then it is called motion. और वही motion अगर straight line में हो रहा है, then it is called a motion in a straight line, or it is also known by the word rectilinear motion. Now let's come to the important point, that is the frame of reference. In order to define the position of any object, we use the Cartesian frame of reference. What is the Cartesian frame of reference? That is it consists of three axes, x, y and z, and time. ये जो point of intersection तीनों axes का, इसको हम लोग बोलते हैं origin O, and basically it is the point of reference. And so we define the position of any object with respect to these three axes, and the position of the object, if it is on the right side of this O, is taken as positive, and the position of the object, if it is on the left side of O, it is taken as negative. Now the position of an object can be defined in one dimension also. One dimension means, in that case, you can use any of one of these axes. You can use x-axis, y-axis or the z-axis to define the position of that object. You can define the position of an object in two dimensions also. So in that case, you will be needing two axes. It can be x and y, or y and z, or y and z, or x and z. And the position of an object can also be defined in three dimension. And for that case, you will be needing all the three axes. So this is how we define the position of an object in space. And with respect to this frame of reference, I will also write here one important thing, that is description of any event. Description of any event depends on the frame of reference chosen. We will try to understand this definition by taking one example. Let us say एक कार है which is moving with a speed of say 90 km per hour. ठीक है, आप पीछे बैठे हुए हैं, then the driver is driving the car. Now that speed of 90 km per hour is the speed of the car with reference to the ground. See here, description of any event depends on the frame of reference. Here the reference chosen is the ground. So with reference to the ground, the speed of the car is 90 km per hour. Whereas the speed of the car with reference to yourself or the driver, means the person who is sitting on the back of the car or the person who is driving the car, will be 0. So in that case, the reference is the person who is sitting in the car. So in that case, the velocity of the car will be 0 if the reference chosen is the driver or the person who is sitting inside the car. Whereas if the reference chosen is the ground, then the speed of the car will be equal to 90 km per hour or 80 km per hour, means it can be any value. So this is an important line. So that is the reason why I have just
mentioned it here. And now let's come to the second point, that is the displacement versus the speed. Displacement versus distance. We will try to understand what is displacement and what is distance and how they differ from each other. So I'm just rubbing it here now. I'm just rubbing these 2 points. Now, let us say this is the ground. This is my home. And this is the market. Okay? This is the marketplace where I want to go. And this is my home. Now, there are many ways of going to the market from my home. So, let us say I have chosen one path like this one. Like this. Let us say this is a 90 degree. So, in order to make the calculation easier. This is point, let us say O. This is point A and this is point B. Now, I start from here, go to the point A, then take a 90 degree turn and then reach the marketplace. Let us say this is 3 kilometer, this is 4 kilometer, okay, 7 kilometers, and I am going on foot. So let us say I have covered this distance in 30 minutes. Total time taken is equal to 30 minutes, let us say. Okay. So distance क्या है? Distance is the path length or the total means it is equal to the path that is the total path length. Path length का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया. So path length will be equal to what? OA plus AB. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट और योर इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल जो पोजीशन है वो O है एंड फाइनल पोजीशन B है. लेट अस से अगर ये मैंने 90 डिग्री पर टर्न लिया था, ये 4 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा. ठीक है, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, टाइम तो हमारा 30 मिनट्स ही लगा फ्रॉम हियर टू हियर. सो मेरा जो आई हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ this distance which is equal to 3 plus 4. So distance covered will be equal to 3 kilometer plus 4 kilometer which is equal to 7 kilometers. So distance is the path length from the initial point to the final point, and the displacement is the shortest distance between the initial position and the final position. तो यहाँ पे तो डिस्टेंस तो 7 हो गया और डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी हो गई? वो हो गई 5 किलोमीटर. दिस इज नाउ टाइम टेकन कितना हो? अच्छा, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू OA प्लस OB और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? It is equal to OB. This one. Sorry, distance is equal to OA plus AB. OA plus AB. And the displacement will be equal to OB. ठीक है? So this is equal to 5 kilometer and the distance is equal to 7. ये आपका 7 किलोमीटर हो जाता है और ये आपका हो जाता है 5 किलोमीटर. Now, so डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो आपको क्लियर हो गया. नाउ सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में. तो वेलोसिटी क्या है हमारी? वेलोसिटी इज बेसिकली इट इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूले से समझ लेंगे. या तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. और स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड और ये पाथ लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. ठीक है.
अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टाइम मैंने लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए वो लिया 30 मिनट्स, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहता हूँ तो मेरी ये जो स्पीड हो जाएगी, सॉरी दिस टाइम हो जाएगा वो आधा घंटा हो जाएगा, हाफ एन आवर. सो द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, that is or you can the distance covered or the path length. So distance, the total distance covered is equal to 3 plus 4, that is equal to 7 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा मेरा, हाफ एन आवर, विच इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर. सो मेरी स्पीड जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और वेलोसिटी जो है वो मेरी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये आपको याद रखना है. And let's move on to the next topic. हाँ, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. तो एवरेज वेलोसिटी है ना, अब एवरेज वेलोसिटी को अगर हमें निकालना है तो उसकी जो एक सबसे पहले आपको समझना है, इसकी आपको जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक है, हमने जो वेलोसिटी में क्या पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी. यहां पर एवरेज वेलोसिटी में मैंने क्या लिखा है, टाइम इंटरवल लिखा है ना. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दोनों. लेट अस से ये एक मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ये है आपका जो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज लेट अस से इसको मैंने लिखा है x इन टर्म्स ऑफ मीटर, और ये आपका टाइम हो गया सेकेंड्स में. ठीक है, नाउ लेट अस से देयर इज अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट नाउ फॉलोज एक लाइक दिस. ये इसका एक कर्व है, दिस इज द कर्व ऑफ द मोशन ऑफ अ कार starting from the rest. Now this is the point, that this is called the point of reference, or you can say the point of origin, or you can say this is the origin. Now हम इसको करते हैं, let us say 1 2 3 4 and 5. ठीक है, टेन मीटर एंड से इसको कहते हैं 25 मीटर, ये वाला पॉइंट. सो ये हमारा हो गया, टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड. सो दिस इज द मोशन ऑफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट इज डिपिक्टेड बाय दिस कर्व. दिस इज द कर्व. नाउ आई हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी in a particular time interval. So average velocity is basically calculated in a particular time interval of a motion. अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल दैट इज t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, तो उस केस में हमारा दैट इज एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल in the average velocity in the time interval, say that is t is equal to 3 and t is equal to 5 seconds. इसमें हमें अगर हमको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल एंड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. सो ये लेट अस से इस पॉइंट को मैं लेता हूँ p ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं लेता हूँ q.
यहाँ से मैं एक लाइन भी बना रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दिस कार बिटवीन टाइम 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15, दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल मेरा कितना है, 2 सेकेंड का, 2 सेकेंड्स। सो मेरा जो एवरेज वेलोसिटी हो गया इस टाइम इंटरवल में वो हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल, दैट इज t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल में मेरी एवरेज वेलोसिटी हो गई 15/2। 15 क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, एंड टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड है, 5 माइनस 3। तो इस प्रकार से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब आता है हमारा एवरेज स्पीड। अच्छा हाँ, यहां पर ये जो लाइन है, ये 2 पॉइंट है हमारे, t इज इक्वल टू, ये हमने जो मैंने बनाया पी एन क्यू। नाउ इस लाइन का जो स्लोप है पी क्यू, दैट ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन connecting the 2 points on this time interval. ठीक है, on this, connecting the 2 points on this time interval, on this time interval gives the value of average acceleration, sorry, average velocity, average velocity। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप इज बेसिकली द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विद दिस हॉरिजॉन्टल। ये आपको मान लीजिए अगर ये थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट मैंने ले लिया, लेट अस से ये आपका है P, ये Q हो गया, इसको R ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा QR अपॉन PR। ठीक है, QR मेरा हो गया 15, PR हो गया 2, तो विच इज इक्वल टू आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द 2 पॉइंट ऑन द टाइम इंटरवल और ऑन दैट टाइम इंटरवल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया है छोटा सा डिस्क्रिप्शन एवरेज वेलोसिटी के बारे में। नाउ वी विल मूव ऑन टू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है कि मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एवरेज स्पीड में कुछ ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अगर किसी बॉडी ने जो आपको ये निकालना है कि कितना उसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने टाइम में किया है, उसको आप डिवाइड कर देंगे, दैट इज कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड द टोटल टाइम टेकन, देन इसको आप डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द एवरेज स्पीड। सो इट इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने की बात है नहीं। अब आते हैं हम we have discussed about average velocity, we have discussed about this speed also. Now let us come to the another point, that is the position time graph. मैं कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ और ये है आपका, let us say this is the time in seconds and this is the
पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लेट अस से इन मीटर्स, दिस इज द पॉइंट ओ। ठीक है, और अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे इसको हम 10, 20, 30 एंड 40 कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, so this is a now I am just making one graph like this one. It is a straight line parallel to this line, which is representing the time taken by any particular object. So अगर ये straight line है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि as the time is changing, इसका जो आपका जो that that distance covered by this object is the same. अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ this is the distance covered, ठीक है, distance covered, मैं ऐसे लिख देता हूँ distance covered. So if the distance covered by the object is the same, that is ये आपका टाइम है t is equal to 0. So at t is equal to 0, the distance which has been covered by the, let's say this is equal to 30 meters with reference to this point O. So लेकिन आप ये देखो t is equal to 1, 2, 3, उस पर भी इसकी जो है that जो आपकी जो distance covered दिखा रही है वो 30, इसका मतलब ये बॉडी जो है आपकी स्टेशनरी है. So the position time graph for a stationary body will give you a straight line. ये आपको इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आएगी. अभी इसी प्रकार से अगर कोई एक यूनिफॉर्म मोशन है, मान लो ये टाइम है सेकेंड्स में और ये आपका है आपका दिस इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मीटर्स, दैट इज ax इन मीटर्स. और अगर ये मैं कहता हूँ ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके, तो दिस इज गिविंग यू दी मीन्स अगर ये आपकी इस प्रकार की एक स्ट्रेट लाइन आती है विच इज इंक्लाइंड इन दिस वे, then it is representing the uniform motion. So this one is representing you the uniform motion. Uniform motion की definition क्या है? If an object is covering equal distance in equal interval of time, then that motion is called a uniform motion. So ये इस प्रकार का जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें अगर ये आपकी लाइन इस प्रकार से इंक्लाइन है, then it indicates that the मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. ये आपका यूनिफॉर्म मोशन बताता है. अगर इसी प्रकार से अगर ये जो डिस्टेंस जो आपका डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है ये अगर आपका स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आप देखो कि एट टी इज इक्वल टू 0 द डिस्टेंस covered by that object is equal to 30 मीटर, बट 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी 4 पे 5 सब पे जो है इसकी जो है वैल्यू सेम ही आ रही है. इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है अभी स्टेशनरी है, इट इज़ नॉट मूविंग, तो देयर दैट इज व्हाई दिस लाइन इज स्ट्रेट. ठीक है, अब आते हैं ठीक है. नाउ दी एक और बना देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ये भी टी है एंड दिस इज एक्स. ठीक है, दिस इज दी पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ हियर अगर ये है अगर आपका इस प्रकार का ग्राफ आता है, इसमें क्या होगा, दिस इंडिकेट्स दैट द एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव. एवरेज वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव है. एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. ठीक है, और यहाँ पर इन द सेकेंड केस द एवरेज वेलोसिटी जो है
ये नेगेटिव है because the displacement is negative, because average velocity is negative because displacement is negative. Is negative. ठीक है. So ये हो गया. So these are the four important क्या कहते हैं आपका दिस पोजीशन टाइम ग्राफ्स जो हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक बार बताना चाह रहा था. So I think I have covered almost all the points which were mentioned on the board just a few minutes back. So again I will just revise these position time graph. That is, if the distance if the position time graph is a straight line, then the object is stationary. If the position time graph is a straight line which is inclined to the horizontal at this certain angle, then that motion is said to be a uniform motion. इसी प्रकार से अगर आपका position time graph जो है that is also a straight line which is inclined to the horizontal, then the average velocity is positive because this displacement is negative. Because here the inclination जो है यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि here the velocity is positive because the displacement is positive. ये आप देखेंगे ऐसे है, यहाँ पे जो displacement है वो इस direction में है, in this direction में. So that is why the average velocity will be considered as positive. यहाँ पे देखोगे आप displacement क्या है, वो नीचे की तरफ है ऐसे करके यूँ. So because of this reason the average velocity in this case is considered as negative because the displacement is negative. Now we will come to the next point, that is the instantaneous velocity. Now instantaneous velocity, instantaneous. अभी हमने एक जो ग्राफ बनाया था, ये टाइम था, दिस वाज द टाइम पोजीशन ग्राफ अभी हमने बनाया था एक कार का, जिससे आपको दिखाया था मैंने यूँ करके, और ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमने उसका वो निकाला था, एवरेज वेलोसिटी निकाला था. ठीक है, ये हमने लिखा, याद होगा आपको, अभी 1 2 3 4 5 था, शायद 7 था, एनीवे. तो यहाँ पे हमने इसकी जो है एक एवरेज वेलोसिटी निकाली थी. तो दैट एवरेज वेलोसिटी वाज बिटवीन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. तो टाइम इंटरवल में ठीक हमने, बट अगर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस मीन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. कहने का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ये तो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ तो आपने एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाला विच वाज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन अ टाइम इंटरवल. ये दो टाइम इंटरवल 2 सेकेंड बिटवीन 5 and 7. बट इफ आई वांट टू फाइंड the instantaneous velocity, that is the velocity at a particular time, let's say that is equal to, let's say t is equal to 2 second or t is equal to 3 second. ठीक है, तो उसको कैसे निकालना है? So there is a big difference. Instantaneous velocity is the velocity at a particular instant of time, and the average velocity is the velocity which is taken over a पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. तो अभी हमें मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं. नाउ एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, सॉरी, दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी है, ठीक है, लेट अस से अगर मैं इसको लिखता हूं v, सो दिस इज गिवन बाय delta x upon delta t, which is written as dx by dt. That is, for example, let us say the displacement
of a particle x is given by, let us say, t square plus t cube, where t is in t जो है वो सेकेंड्स में है और x जो है वो मीटर्स में है. तो अभी हमें मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है. Let us say I want to calculate the instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds. तो कैसे निकालेंगे? Instantaneous velocity is given by dx by dt, that is, it is the first differentiation of x with respect to t. अब आपको तो पता ही है differentiation. I hope every one of you must be knowing that if y is equal to xn, then dy by dx कितना हो जाता है? ये जो पावर है हम यहाँ लिख लेते हैं, x लिखेंगे और n में से एक माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा. सेम चीज़ यहाँ हम करेंगे. तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 यहाँ लिखेंगे, t यहाँ लिखेंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 2t हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ लिखेंगे, t यहाँ लिखेंगे, 3 में से एक माइनस जाएगा तो ये हो गया. तो दिस इज द, ठीक है, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आपका ये आ गया dx अपॉन dt है. अब यू हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा? 2 t की वैल्यू क्या 2 हो गई, प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर. So this is equal to 4 plus 4 into 3 12. This is equal to 16 meter per second. अब आपको मान लीजिए आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 3 seconds. तो क्या हो जाएगा? v instantaneous is equal to dx by dt. So which is equal to, यहाँ पे हम t की वैल्यू 3 लगा देंगे तो 3 into 2 हो जाएगा 6 प्लस 3 स्क्वायर, 3 या 9 थी 27. तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस ये होगा आपका 33 meters per second. So this is how we calculate the instantaneous velocity. Instantaneous velocity is the velocity at a particular moment of time. ठीक है, जैसे यहाँ पर we have found the instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds, 16 meter per second. We have found the instantaneous velocity at t is equal to 3 seconds. 3 seconds पे कितना आ गया? 32 meter per second. ठीक है, so this is basically the definition of instantaneous velocity. And so now एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको स्टडी करते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है v, लेट अस से इट इज इन मीटर पर सेकंड, और ये आपका टाइम है. टाइम हम ले लेते हैं सेकंड्स में, ठीक है. और लेट अस से दिस इज द मोशन ऑफ ए कार. This is the motion of a car given by this curve. ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में. इसको हम अभी लिख लेते हैं. 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, लेट्स से 30 हो गया, ठीक है. 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है. Now this is the point A, this is the point B, and this is the point C. ठीक है. So the car starts from this position A, moves to the point A, goes to the point B, and then it comes to a halt at the point C. So यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कार. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट यूजिंग दिस ग्राफ, एंड सेकंड
what is the average let us say, because I have not told you about this average acceleration, so I will just ask you to find the total displacement. Now, in the velocity time graph, the area under the graph gives you the value of the displacement. ये जो ग्राफ का जो एरिया है ना, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ. इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया है, दिस विल गिव यू द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट कार. तो अभी डिस्प्लेसमेंट है, लेटर से मैं कहता हूँ दिस इज 10 सेकेंड्स है, ये 20 सेकेंड रहा और ये आपका हो गया 30 सेकेंड्स. द कार came to the point A in 10 seconds, continued to move at the same this velocity up to the point B for the next 10 seconds, और इसके बाद में it came to the point C, that it came to a halt at time is equal to 30 seconds. तो यहाँ पे जो total displacement क्या हो जाएगा, that will be equal to the area under this curve in the case of velocity time graph, because you know velocity is equal to what? Displacement is equal to velocity into time. So what is this? This one. This is velocity. ये आपका टाइम इंटरवल है, ये आपका वेलोसिटी है. ठीक है, तो अगर आप वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो ये क्या है, बेसिकली इट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. So that is why if we find the area of this means area under this curve, then we will get the total displacement. तो यहाँ पर क्या आ जाता है मेरा, इस पहले हम इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, हाफ इंटू ये ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 10 इंटू ये अगर मैं कहता हूँ लेट्स से इट इज 30, दैट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए इज 30. सो ये कितना हो गया इंटू 30 प्लस ये है 30 इंटू 10. तो दिस इज इसका एरिया निकाल दिया, और इसका एरिया कितना है प्लस हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू 30. तो ये आपका जो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 150 प्लस 300 प्लस 150 which is equal to 300 plus 300, that is equal to 600 meter. So the displacement of this car from O to C, which is following this curve, this is the motion curve, will be equal to 600 meter. ठीक है. So this is how we calculate the displacement in case of the velocity time graph. And now इसमें एक पॉइंट और आ जाता है मेरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये निकाल लिया कि अगर जो एरिया है इस ग्राफ का, दैट इज ये जो कर्व हमारी बन रही है उसके अंदर का जो एरिया है, अगर हम उसका एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट अस कम टू द another point that is called this acceleration. एक्सेलरेशन का एक पॉइंट है, दूसरा है आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, आई थिंक ये भी हो गया. एक तो हो गया आपका, ये हो गया एंड दिस हो गया. So acceleration क्या है? This is as everybody knows that rate of change of velocity. Rate of change of velocity with time. ठीक है, rate of change of velocity with time. This is called acceleration है. अभी एवरेज एक्सेलरेशन क्या लेते हैं?
change in velocity over a time interval divided by the time interval. ठीक है. So average acceleration is equal to change in velocity over a time interval divided by the time interval, and acceleration is defined as the rate of change of velocity with time. Instantaneous अब जैसे मान लीजिए आई एम सेइंग एक और वर्ड आ जाता है इंस्टेंटेनियस. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? दिस इज द एक्सेलरेशन of that object at any moment of time. Acceleration at any moment of time. ठीक है. जैसे अभी हमने वो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, या इसको हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. एंड this instantaneous acceleration क्या है मेरा? That is the acceleration at any moment of time. So let us try to understand this with the help of it. Again a diagram. This is t. ठीक है. And let us say this is v. And this is the point O. अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था उसी में समझने की कोशिश करते हैं. जो कार का हमने अभी एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है. दिस वॉज द मोशन ऑफ द कार, ऐसे करके था, जहाँ पे ये आपका पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, जहाँ पे कार आके रुक गया. और यहाँ पर आपका ये 10 सेकंड पे था, ये 20 पे था, ये 30 था. ये आपके सब सेकंड्स में है, ठीक है. ये आपका ये है आपका मीटर पर सेकंड है. ये वाला पॉइंट हमने शायद रखा था, आई थिंक इट वाज, आई थिंक लेट्स से 5 था, आई थिंक इट वाज मे बी 30 था, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है. और ये आपका हो गया 5 था, फिर 10, 15, 20 एंड देन 30. ये आपका 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 10 हो गया. सो अभी हम पूछ रहे हैं, अगर आपको इस ग्राफ से मैं पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन द in this part of the journey, that is average acceleration from O to A, इस पार्ट में. तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपकी? यहाँ से 0 से लेकर 30, फाइनल जो है 30 है, इनिशियली 0 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 हो गई. टाइम इंटरवल क्या हुआ? 10, तो विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. ये आपको मैंने यहाँ से समझाया. इसी प्रकार से अगर आप इसका देखेंगे ए टू बी में क्या है? वेलोसिटी इनिशियल भी 30 है, फाइनल भी वेलोसिटी जो है आपका 30 है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई? 0. O2 है, अब मैं लिखता हूँ A to B. वो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल इज 30 है, फाइनल वेलोसिटी भी 30 है, तो इट विल बिकम इक्वल टू 30 माइनस 30, वो आपको 0 हो जाएगा. अब आता है फ्रॉम B to A, तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फाइनल इज 0, इनिशियल इज 30, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब माइनस क्यों आ रहा है? इट का दिस माइनस साइन इज कमिंग बिकॉज दिस मोशन इज रिटार्डिंग. दिस इज रिटार्डेशन, ठीक है. दिस इज एक्सेलरेशन, इसीलिए यहाँ पर आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन. नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको एक अगेन छोटे से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब जैसे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. लेट अस से s दिया हुआ है,
इज इक्वल टू, जैसे आपको बताया था, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब. तो एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, जैसे इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम एंड दिस इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और विच इज इक्वल टू d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम इन सेकेंड. ये t जो है टाइम इन सेकेंड है, इट इज इन सेकेंड्स में, और x जो है वो अगर अभी इस केस में मीटर्स में है. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और d स्क्वायर, और d स्क्वायर इज अपॉन dt स्क्वायर. सो इसको हम पहला डिफरेंशिएशन कर लो, ds अपॉन dt कितना आया, 2t प्लस 3t स्क्वायर. सेकेंड डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, आई होप आप लोग को ये पता है, ये 2 हो जाएगा प्लस 60 हो गया. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द instantaneous acceleration at, say, let us say t is equal to 2 second, तो क्या हो जाएगा, t के वैल्यू 2 डाल देंगे, तो at t is equal to 2 second instantaneous acceleration will be equal to 6 into 2, that is 12 plus 2 14 meter per second square. अगर 3 पे निकालना है तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, 18 plus 2 20 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. So this is all for today. In the next lecture, that is in the lecture number 2, I will try to solve a few questions based on what we have studied today. And so till then, have a nice day. Bye.